Out of 320 students who appeared in Standard 10 exam, 181 students secured more than 75% and 50 students secured more than 90%. Sumedha Maheshwari with 98.8% is second topper of Bokaro district. I would like everyone to give her a huge round of applause, and she is third state topper also in secondary school examination. One more round of applause for her. All the praises she deserves today. Whereas Ayush Kumar and Dhruv Raj Singh with 98.6% enjoyed jointly the position of third district topper. They all have made us proud. Now in senior school certificate examination, that is standard 12, 345 students appeared, out of which 160 students secured more than 75%. And the students who made us proud and our heart also swelled with pride are Amar Jyoti and Shikha Kumari with 97.6%, who brought laurels to our school by securing their position as first science topper in Bokaro district. They both jointly enjoy the first science topper of Bokaro district. They are the toppers of science stream. I couldn't hear the loud clapping for the science stream students. Yes. Now Vedant Chaudhary with 96.4% also earned glory as fourth district topper. He's fourth district topper. Suhani Ranjan also attracted our attention for her 100 out of 100 marks in chemistry. That's also a marvelous job done by her. So forthwith, I invite our distinguished chief guest and guest of honor on the stage with our respected principal, sir, to award these meritorious students. So please be here with us. Topper of Bokaro district and third state topper in secondary school examination. Just wait, one by one. Don't be in a hurry. Let her have her moment of, the best moment of her life, being clicked by media personnel. She has made our day also, and her life is also set with a percentage. Congratulations, Sumedha. Now Ayush Kumar and Dhruv Raj, they jointly enjoy third district topper position with 98.6%. They're enjoying the candid moment of their life. Now Sandhya Kumari, 97.2%. Khushi Kumari Datta, 97.2%. Yes, students, keep motivating them with your clappings. They worked hard throughout the year. Rupam Kumari, 96%.
Deepika Kumari, 95.4%. Now Palak, 95.4%. We welcome DAV Sector 6 Principal, Mrs. Anuradha. Welcome ma'am to our Pratibha Samman program. Katyayani, 95.2%. Shivam Lal, 94.4%. Radha Kumari Sharma, 94.2%. Priyanshu Mishra, 94.2%. Anya, 94%. Aditi, 93.8%. Aditya Raj, 93.8%. Shreya Maji, 93.8%. Sudha, 93.6%. Supriya Kumari. I would like to request Jaiswal sir to be with us. Supriya Kumari, 93.6%. Aryan Bharadwaj, 93.4%. Princy Priya, 93.2%. Just hold on. Sonal Kumari, 93.2%. Amit Kumar Mehto, 93%. Manan, 92.8%. Anupriya Kumari, 92.6%. Astha Singh, 92.4%. Shweta Rani, 92.4%. Shruti Kumari Sinha, 92.2%. Aisha Afri, 92.2%.
Anushka Singh, 92%. Kalyani Kumari, 92%. I request Shashi Bhushan sir also to be on the stage for felicitating the students. Kumari Pooja Banerjee, 92%. Shivam Ranjan, 91.8%. Khushi Kumari, 91.4%. I request Brahmadev sir to be here on the stage for felicitating the students. Sir, please. Khushi Kumari, 91.4%. Manvi Raj, 91.4%. Move forward. Brahmadev sir, please be here on the stage for felicitating the students. Amar Agarwal, 91%. Aman Kumar, 90.8%. Aman Kumar, 90.8%. Sujal Kumar, 90.6%. Sujal Kumar. Harshit, 90.2%. Sachin, 90.2%. Bhanu Pratap Singh, 90.2%. Pratham Kumar, 90%. Siddharth Sinha, 89.8%. I request Suraj sir to be here on the stage for felicitating our science toppers. Suraj sir. Before that, sir, please be here with us on the stage. And I request all the students to kindly come forward for group photography. Standard 10 toppers with them. Exam. Congratulations. Aditi Kashyap, 94.2%. Shreya Kumari, 94%. Sonam Kumari, 93%. Shubhadeep Mandal, 92.4%. Ritupriya, 90.6%. Sandeep Kumar Nayak, 90%. Now Suraj sir is going to felicitate the toppers of class 12 Commerce Stream. We have Avishka Singh, 94%, our commerce topper. Our commerce topper, Avishka Singh, 94%.
And sir, she is a multi-talented student. She has written a book also, a highly well-acclaimed book. And she can be a future book writer also, who knows. Now, Saleha Parveen, 93.8%. Our commerce toppers here on the stage. Harsh Kumar, 91.8%. I request DAV Sector 6 ma'am, Principal ma'am, to kindly honor the students. Mahi Goyal, 91.6%. Shubham Kumar, 91.6%. Now I request DAV Sector 8 Principal to kindly felicitate the students. Mrityunjay Kumar, 91%. Kushal Vyas. Kushal Vyas. Mrityunjay hasn't come, he is not there. He is Kushal Vyas, next one. Reshav Kumar, 90%. Now I request Sachi Bhushan sir to kindly felicitate the students. Rajdeepak, 89.2%. Archana Kumari, 88.8%. Now toppers of humanities, art stream. Vedant Chaudhary, 96.4%. He is also 4th district topper. Vedant Chaudhary is also the 4th district topper. Let's have a huge round of applause for him. He is 4th district topper and our school art stream topper with 96.4%, receiving award from DIG sir. Now Manisha Kumari, 94.8%. Ritika Raj, 91.2%. Now we are going to have group photography of standard 12 toppers. Kindly come forward, students, and take position. Class 12 have made the day of our standard 10 and 12 toppers. Thank you very much for sparing very precious moment out of your very busy schedule. Our LNC Chairman, D.S. Venkata is on the DIG of Bokaro. Now, sir is going to honor our guest of honor. Our guest of honor, Mr. Vikas Kumar. He is the honored by our principal, sir. So please be here with us because we have parents of our standard 12 toppers. Amar Jyoti Shikha Kumari, your parents are here. Amar Jyoti Shikha Kumari, if your parents are here, please be here on the stage for group photography with our guests. The family of Amar Jyoti and Shikha Kumari, first science topper of Bokaro district, they are here on the stage. It's their day also. Their remarkable hard work is being paid finally. The roots of their Vedic culture and dharma. And before we part ways, I thank our
chief guest and the guest of honor for really motivating and inspiring the students, and we congratulate our students and wish them all the very best in life. May you keep shining and could carve and create the best for yourself and the world. Thank you parents for entrusting us the responsibility of directing their creativity, and you all too worked very, very hard in their growth and development. We express gratitude to our principal, sir, NMC members, overall the management for their time-to-time guidelines and direction to the teachers. Teachers also constantly poured out their hearts and minds for students' overall development. They also deserve all thanks and appreciation. Nonetheless, the supporting staff of the school is also worthy of all the praises for assisting us at each stage in our life in fulfilling all the tasks flawlessly. And once again, I thank you all and everybody sitting here in the audience, and have a great day ahead. Capacity to decide your destiny. You can fasten your fate by your own efforts. And we are so proud, the DAV fraternity, especially the DAV Sector 4 family, is so proud that you have achieved the goal and you have ranked third in the state in class 12 and class 10 examination. I also congratulate the proud parents whose constant support, encouragement and belief have helped their children rise and shine. Your role in their success is invaluable and deeply appreciated. I also congratulate the teachers, the guiding light of this institution, whose commitment, compassion and inspirational efforts have nurtured young minds and helped them grow into confident individually. Let us remember, however, that success is not a destination but a significant milestone. May our students continue to dream big, stay humble and make a meaningful difference wherever they go. We know that before getting the success, we should possess some extra qualities. That is bold actions, vibrating enthusiasm, self-confidence, courage, resoluteness, perseverance, and above all, positive attitude. And I hope that you will excel in your life with these humble, and I hope that you will always shine in the sky of the DAV family. As we honor academic excellence today, let us also reaffirm our dedication to holistic development, fostering intellect, integrity, and initiative in every learner. Once again, congratulations to all the achievers. You have made us immensely proud. मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. Thank you, thank you. You all have a huge potential, unlimited, infinite potential within you. And at the very first stage of life, you really proved that you are not ordinary. You are the extraordinary. At this juncture, today, during your CBSE exam 10-12, you all the boys and girls proved that you are the extraordinary and you are going to log, you are going to shine in the future. So, it's a historical day for all of us. But अभी सिर्फ ये आगाज है. बट आगाज इतना जोरदार होगा, आगाज इतना अच्छा होगा, अंजाम भी उससे ज़्यादा अच्छा होगा. So we all are very much sure in upcoming time आप सभी लोग सूर्य की भांति प्रखर होगे, निखरोगे. बट जैसे कि अभी आपके गुरुजनों ने कहा, एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए मेंटर, मैं भी बोल सकता हूँ आपको, सफलता वास्तव में ना, सक्सेस नॉट कम जस्ट बाय चांस, कोइंसिडेंस नहीं है. और ऑलरेडी मैं विकास सर की बातों से ताल्लुका रखता हूँ. यू नो, गेटिंग द सक्सेस इज इजी, बट मेंटेनिंग द सक्सेस इज नॉट इजी. अभी आपको सक्सेस मिल गया तो लोग बोल सकता है कि तुक्के से मिल गया होगा, कल यदि फेल हो जाओगे ऐसे मिल गया था.
सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इसको जिस जिल के साथ प्राप्त किए हो ना, यू विल कंटिन्यू द सेम पैशन एंड जिल. फॉर दिस यू हैव टू बी फोकस्ड, you have to determine, you have to be punctual, you have to be disciplined, you have a मतलब craziness for your dream. ये 5 में नाम कहा ना, ये चीज़ें आपको ऐसा है जो हमेशा they will keep motivating for you all the time in the future. Second, ये सक्सेस सिर्फ आपका नहीं है, इस सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, आपके टीचर, आपके गुरुजनों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है. So it's a holistic product. So this concept will transform you as a complete human beings. कि मैं एक अहंकार की भावना आती है, अरे मैं so and so got 99% marks. No, ये आपका नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है आपका मेहनत का, आपके पेरेंट्स के डेडिकेशन का, आपके पेरेंट्स का कमिटमेंट का, आपके टीचर की गाइडेंस का, आपके टीचर का डिसिप्लिन का, सबका प्रोडक्ट है. इट मीन्स एक कहावत है कि एक छोटी सी बीज सीड्स का भी अंकुरण होता है, उसके लिए भी अच्छा माहौल चाहिए. जब तक उसको अच्छे से उसका उसका प्लांटिंग नहीं होगा, उसका मतलब आप सिंचाई नहीं करोगे, अच्छा क्लाइमेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा, अच्छा सॉइल नहीं मिलेगा, अच्छा उसमें आप डालोगे नहीं, खाद वाल तो खराब हो जाता है. तो ये है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए भी हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. ऐसा ना हो सफलता प्राप्त कर जाओ, भूल जाओ कि हम अपने दम पे हैं. जिस दिन ये भावना आप में आ गई, एक वो हम द्वितीय नास्ती, बोली आई एम द पर्सन, उस दिन आपका सत्यानाश शुरू है. इसलिए अहंकार, एरोगेंस हमेशा अवॉइड करना है. अपनी सफलता के उसमें चकराहट में डूबना नहीं है. बात सही है, आज के टाइम में 99% लगता है कि हम लोग सोचते भी नहीं थे. हम लोग सोचते 60% आ गए, जीवन सक्सेस हो गया, माँ बाप भी उसी में खुश. लेकिन अब 92% आने के बाद लगता है कि यार कोई पाप हो गया क्या, तो मार्क्स क्यों आ गए. सो प्लीज अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझो, बट कभी अपने में खस्ता मत लाओ, एरोगेंस मत लाओ कि हम जंग जीत लिए हैं. जस्ट स्टार्ट. सेकेंड थिंग इज दैट कि टाइम just a wonderful thing. Unless you will not manage your time in your life, आप लाइफ में ना कोई प्लान कर सकते हो ना चल सकते हो. इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी आपकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट होगा. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज, टाइम कम है, बहुत हो गया, आई वांट टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स बट ड्यू टू सम शेड्यूल ऑफ माय डिफरेंट मीटिंग, एक ना लाइफ में टारगेट, एम्बिशन, ड्रीम पालना बहुत जरूरी है. एक बार ना यू जस्ट फोकस कि आपको लाइफ में करना क्या है, और वो जो फोकस आपके अपने थॉट, आपके अपने हॉबीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, आपको पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, टीचर की बात सुननी चाहिए, बट आपको लाइफ में अच्छा क्या लगता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए. मान लो कि मैं आपको प्रेशराइज कर दूंगा, तुम मैं फिजिक्स में 19 ले आए, तुम एक अच्छा IIT बन सकते हो. नॉट नेसेसरली कि अच्छा नहीं होता कि वो अच्छा IAS बन जाए, अच्छा टीचर बन जाए, अच्छा एकेडमिशियन बन जाए. एक IIT बन के आप 1000 IIT बना सकते हो. ठीक, एक टीचर बन के आप हमारे जैसे हजारों IIT बना सकते हो. तो ये दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. होता है कि वो आपके शिद्दत, आपकी पर्सनालिटी के कितने अकॉर्डिंग, कितने उसके अनुरूप है. इसलिए आत्मदीपो भव बुद्ध का एक फिलॉसफी है, अपना दीपक स्वयं बनो. बिकॉज all the time it's not necessarily you will get a son of son, not necessarily you will get the parenting of your parents, not necessarily you will get the direction of teacher, but यदि अपना दीपक स्वयं बन जाओगे, आपको पता हो जाएगा हमारे लक्ष्य का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दैट डे यू विल स्टार्ट की मूविंग द लाइफ. इसलिए अपना दीपक स्वयं बनो. तीसरा चीज, डोंट गेट स्केयर्ड विद फेल्योर. और सफलता को यदि डिफाइन करते हो ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि लाख का ठिकाना नहीं, लाख कुछ भी हो सकता है. इसलिए हमेशा ना अपने असफलता का सम्मान करो. और सफलता मतलब प्लस सफलता, आने वाली सफलता. इसलिए अपनी असफलताओं को भी इंजॉय करो. थर्ड पॉइंट, जस्ट ट्राई टू किल द फियर. अपने फियर को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एज एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक और उसमें जो उसका डिफरेंट चैप्टर होता है, उसमें जो चैप्टर आपको सबसे डराए ना, तो पहले उस भूत को मार दो जो आपके लिए इजी है, जिसको आप लाइक करते हो तो कभी लाइक कर सकते हो। तो क्या होगा, एक बार जो आपको टफेस्ट लग रहा है कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, न्यूमेरिकल, उसको फील कर देते हो, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, यदि मैं तेंदुलकर को बोल कर सकता हूँ, यू नो, तो मैं किसी को बोल कर सकता हूँ। गॉट द मैसेज। इसके सबसे बड़े एनिमी, सबसे बड़े थ्रेट, सबसे बड़े फियर को सबसे पहले मारो अपने संकल्प से। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आई गेटिंग मैसेज? इसे साइकोलॉजी, इसे फिलॉसफी। सो आई होप कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो मुझे? कि जो सब्जेक्ट टफ लगे, जो चैप्टर टफ लगे, सबसे पहले उसी काउंटर करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्राई टू बी ऑलवेज ए गुड ह्यूमन बीइंग्स। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन आज एक अच्छा इंसान बन जाओ। अपना लाइफ ना, यू नो, हर कोई जी लेता है, एक जानवर भी लाइफ जीता है, बट यू आर ह्यूमन बीइंग्स। और मैंने स्टार्टिंग में कहा, गॉड हैज गिवन यू ह्यूमन पोटेंशियल। इसलिए अच्छा इंसान बनोगे unless you will not feel the pain of others, unless you will not connect with society, unless you will not connect with the emotion of parents। मान लो आप IIT कर लेते हो, मेडिकल कर लेते हो, ड्यूरिंग कोरोना टाइम, दैट टाइम आई संस्कृत ऑफ रांची, आई फाउंड इन रांची parents are dying, but kids, those who got a good salary, good package somewhere in US and Australia, they did not back Ranchi to take care of parents. They forget their parents. बोलो इससे पाप कुछ हो सकता है? Tell me one word. तो क्या फायदा बच्चे को IIT बना के, मेडिकल बना के, IIT बना के, unless you forget the values, emotion, sensibility, understanding। इसलिए अपने कुछ भी लाके सक्सेस कर लो, कुछ भी बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, टेक्नीशियन बन जाओ, unless you will not carry the good culture, good tradition, good value, unless you empathetically you will not adapt to society, सब बेकार है। आप मशीन नहीं हो, you are human beings। इसलिए जिंदा रहो, alive रहो, you to be happy all the time, प्रसन्न रहो। एक कहावत है, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, वह पथ क्या, वो पथिक क्या, जिसमें बिखरे सुल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। लाइफ में कुछ भी होता है, खाना नहीं मिलता, डोंट केयर यार, भूल जाओ, नहीं सो पाते हो। इट्स माई यू नो लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ ड्यूरिंग माई यूपीएससी डेट्स। आई हैव ए वर्ड नाना जी, आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू फिनिश यूपीएससी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, बिकॉज आई लव माई नाना जी ए लॉट। कोई पैरेलल नहीं था, मैं उनकी आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ। उनको मैंने एक वर्ड वचन दिया था, आई विल ट्राई टू क्रैक यूपीएससी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, कि मेरे पास सेकंड अटैम्प्ट है ही नहीं, उसके बाद सिर्फ मृत्यु है, खत्म, लाइफ खत्म। बिकॉज ये टेक ना यूपीएससी थर्ड अटैम्प्ट में मिलता था, फोर्थ अटैम्प्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जाएगा, बट आई ऑलवेज टेक नहीं, फोर्थ तो है ही नहीं, फर्स्ट यही लास्ट यही है। सो आई यू नो जंप इन द शीट एंड यू गाइस कांट बिलीव, कई बार ऐसा होता था ना, सिर्फ मैं ब्लैक, यू नो, ब्लैक कॉफी इसलिए कि नींद तो होती है वो ना, इट्स लाइक यू नो सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन। ब्लैक कॉफी चाय पी के ना मैं 2-3 दिन रह जाता था, सोना तो मुश्किल हो जाता था। पैसे होते थे, बाहर समोसा में कौन जाएगा, क्या खराब हो जाएगा। यदि मैं खाना बना रहा हूँ, सपोज जाके भूख लगी है, रेस्टोरेंट ऐसा था नहीं कि वो स्टाफ था, तो मैं सोचता था कि चावल में इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ओके, कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट में यू नो लैक्टेज फैक्टर से, तो शुगर से क्या होगा, एक इससे इंसुलिन बढ़ेगा, डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज होगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इंडिया में डायबिटीज का एक चावल से कितना क्वेश्चन बन रहा है, एक चावल से लैक्टेज फैक्टर सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, डायबिटीज, इंसुलिन, इंडिया में डायबिटिक कंट्री बन जाएगा। एक होगा तुम उधर देखते हो इंडिया में कौन सा ऐसा रिजिम है जहाँ पर चावल का प्रोडक्शन होता है, तो फिर इकोनॉमिक स्टार्ट हो गया चावल से, ओके। तो इंडिया में फिर ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, एक क्लाइमेटिक होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए। इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनी है, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर, बासमती वगैरह जो बोलते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ योर पागलपन दीवानगी, एक चावल कितना क्वेश्चन खोल देता है। इसलिए इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू कीप योरसेल्फ ऑलवेज अवेक, इट्स अ फंडामेंटल रूल ऑफ यूपीएससी।
सब कुछ का मीनिंग है। यूपीएससी और कोई भी चीज वाहियात मीनिंगलेस कुछ भी नहीं है। आप जो कपड़ा पहने हो, ये पॉलिस्टर है, टालिन है, नालिन है, कॉटन है, क्या है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन सा कंपनी है, ये पीटरलैंड है, क्या क्या होता है, किस कंपनी का है, किस देश का है, इसका इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ का होता है, इसका सर्टिफिकेट क्या है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट क्या है, एक बाइक से, मोबाइल से, एक पानी से, आप जिस चेयर बैठो चेयर से, नहीं केवल कंपनी किस कंपनी का है। देखो जहाँ पे हो ना अपने आप को अवेक रखो, और ये तभी होता है जब अपने आप को रखो दीवानगी वाले मूड में। कुछ लोग मूवी देखे हो दीवानगी वाली मूवी, जिसमें ना एक केमिस्ट्री दिखाया जाता है हीरो हीरोइन के बीच में, एक बॉन्डिंग दिखाया जाता है, जिससे लोग प्यार बोलता है, मोहब्बत बोलता है। आप जानते हो ना, ये दीवानगी, ये प्यार, ये मोहब्बत यदि आपका अपन लक्ष्य प्राप्त हो जाए ना, तो आपको सक्सेस को रोक नहीं सकता है। जब मैं एज एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था, मैं ग्रेजुएशन में था, तो हर बच्चे में ड्यू का प्रोडक्ट रहा हूँ, हर मंथ में यूपीएससी बिल्डिंग में खड़ा होता था। So every month, I go to see the UPSC building, और वो बोलते थे तुमको नहीं छोड़ेंगे। इट्स ना सम सॉर्ट ऑफ दीवानगी, इट्स पागलपन। कुछ नहीं होता था, यूपीएससी बिल्डिंग में खड़ा हो जाते थे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने ऐसे ही करता था। और तब क्यों नहीं, जब आप पागल में जाओगे, दीवानगी में जाओगे, जब उन्माद में जाओगे, आप ना ऑब्सेसिव हो गए, तभी आपको ना घर परिवार दुनिया समाज सब छूट जाएगा। आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, नींद लगेगी, और उसी समय आपको पेन भी होगा, स्ट्रगल भी होगा, उसी को एंजॉय करो। हम नहीं सोए, डॉट किया नहीं सोएंगे यार, जिंदगी में अच्छे एक बार सफलता मिलती सोते रहेंगे, 2 दिन नहीं खाएं क्या मर हो जाएंगे। सो बट यू नो, यू टू कीप स्पार्क योरसेल्फ अलाइव, अनलेस जब पागलपन दीवानगी का आलम नहीं आएगा, यू कांट गिव 100%, आप रूथलेसली फोटे लगा पाओगे। बिकॉज ये स्टार्टिंग है, इसलिए इस चकाचौंध में मैं इसलिए आप लोग बोल रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट है मेरे भाइयों। अभी खुश नहीं होना है, खुश होने का हक आप लोग अभी नहीं है। बिकॉज यदि इसके बाद आप रुक जाते हो ना, नुकसान आपका नहीं होगा, क्योंकि आप सब पोटेंशियल है, कैलिबर है, और आप लोग इसी हैप्पीनेस में, प्लेजर में, यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, यहाँ फंक्शन उलझे आ जाओगे ना, तो फिर ये कंट्री का नुकसान हो जाएगा। तो आई वांट, जितने बच्चे यहाँ पे हैं जिसने परफॉर्म किया है, जो नहीं भी किया है, वो सभी लाइफ में यूनिक कर सकता है। नए महात्मा बलिन लभ्या, एक कहावत है, स्ट्रेंथ लव बिटवीन द डेथ, हमारी ये विवेकानंद का थ्योरी है। इसलिए आप सब कुछ, सब लोग बहुत स्पेशल हो, इसलिए आप करोगे, आपके पेरेंट का भला होगा, आपके मोहल्ले का भला होगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा, स्टेट का होगा, एज वेल एज नेशन का होगा। हो सकता है कोई इमेज लाइसेंस का हो जाए, कौन जानता है, थॉमस अल्वा एडिसन कुछ भी कर दे, ऑस्टिन पर आप में से कोई हो जाए। सो फिर ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और रुको मत, थको मत, बट ये है हमेशा पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, प्रैग्मेटिक थॉट लेके आगे बढ़ाओ, सबका सोचो, सबका कल्याण करो। ईश्वर में हैव फेथ इन गॉड, फिर मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, हैव फेथ इन गॉड। मैं कहानी सुना रहा था अपना कि मैं यूपीएससी गया, ये पागलपन यही दीवान थ्योरी बताया, उसको मैंने अप्लाई किया। खाते थे, पीते थे, चाय पीते थे, तो ही सोचते थे चाय क्या है, टेनिन है, निकोटीन क्या है, एक चाय से क्वेश्चन बन रहा है। दिल्ली में बस में जाती थी, सीएनजी बस में, तो खड़े होकर जगह मिलती नहीं थी। अब सीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, ये बस क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, तो जहाँ तो उसी दीवानगी के साथ बेस्ट विद द ब्लेस ऑफ गॉड मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट अकेडमिक यूपीएससी। ये ऐसा तो नहीं है, एक्सपीरियंस है। सफलता के लिए आपको निछावर तो करना ही पड़ेगा, अपने आप का उत्सर्ग कर दो। एंड यू नो डीएवी का इतिहास रहा है। डीएवी आप लोगों को अपने स्टूडेंट लाइफ से ही आपके अंदर की संस्कृति, मूल्य, आपके ओज, उत्साह, आपकी होलिस्टिक अप्रोच, एक है बीइंग इटसेल्फ, बीइंग फॉर इटसेल्फ, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, बाद में बात करेंगे। बट आप अपने दम पे नहीं हो, आप पे कर्ज है इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस परिवार का, अपने माँ बाप का। इसलिए उस ऋण से ऋण होने के लिए आप सबके लिए जरूरी है कि जीवन में एक लक्ष्य पा लो बेटा। So thank you, may God bless all of you, keep rocking, keep turning all the rest, God bless you, God bless you. बोकारो में जो भी रिजल्ट है, पेरेंट्स उसके पैरवी हैं, और यहाँ के स्कूल्स, और उसके बाद बच्चे, आप प्यारे बच्चों, मुझे इतनी खुशी है
कि आज जब मैं रिजल्ट देखा, मैंने अखबार में पढ़ा तो भरोसा नहीं हुआ था, पर बार बार पढ़ा और जब बच्ची से भेंट हुई और जानकर खुशी हुई कि स्कूल की टीचर है। 494 नंबर, हिंदी समझते हो, 494 आउट ऑफ 511। तो इतना बड़ा नंबर स्टेट 3 आप सभी लोग के लिए प्रेरणा है। एक जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए। और मैं सुरेंद्र झा सर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल सभी से, उस बच्ची पर इस स्कूल का आशीर्वाद दें कि 2 साल बाद CUET में भी टॉपर इस जगह से होगा। और मैं जब बोलता हूं वो होता है, जो नहीं बोलता हूं वो भी होता है। ये चीजें हैं बच्चों को लेकर के। पेरेंट्स को एक बात कहूंगा, हम लोग के पेरेंट्स को फॉलो की आप कीजिए तो ज्यादा फायदा है। लाल एक पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए प्राप्त षोडश वर्षे पुत्र मित वदाचरे। ये इंस्टाग्राम फेसबुक का समय है। 16 साल में मान लीजिए कि आपके बस से जा चुके हैं और शिक्षकों का सम्मान बचा के रखें। ये 10th के बच्चे, मैं जब DPL बोकारो आया था तो मुझे एक काम मिला था पूछने के लिए कि भाई ये बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं और सूरज सर तो है 11th में, जब 10th में बच्चा नंबर लाता है बोकारो में, ऐसे चलता है कॉरिडोर में कि टीचर को धक्का मार देगा इससे एकदम। हाँ, और 11th में जो हाफ ईयरली होती है सभी स्कूलों में, तो 10th के बाद बच्चा गाना गाता है, यहाँ के हम सिकंदर जिसको रखें जेब के अंदर। याद रखो 8 वाले भी। और 10 से जो 11 में जा रहे हो, और 11 के बाद होता है एक गीत आता है, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसीलिए चुप रहते हैं। हाँ, 10th में 95 नंबर ला के बमकना नहीं, और 75% ला करके नहीं। एक से गाथाएं हैं इस देश में जब कम नंबर ला करके लोगों ने अच्छा किया है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल। और अभी तो ऐसा है ना कि 92% वाले बच्चे भी लगता है कि मैं कुछ अपराध कर दिया हूँ। बेटा बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो काम था खत्म हो गया, बहुत यश का प्रश्न है, आगे आप करें, अच्छा करेंगे। मैं छोटी जानकारी देके अपनी बात को विराम दूंगा। 2004 में मैं शहर में था, सेंट जेवियर स्कूल के स्टूडेंट की महाश्वेता मंडल, 4242 रैंक था, 4242। अब उस साल 4242 रैंक में IIT उसको नहीं मिला ठीक से, एंड शी वेंट टू जादवपुर यूनिवर्सिटी और एडमिशन मिला। उस समय सीटों की संख्या 4000 के आसपास थी। 4242 रैंक पे IIT नहीं मिला। और अभी मोदी जी ने बहुत काम किया, इसमें काम किया है, 17000 से ज्यादा सीटें हैं, अभी 1200 सीटें और बढ़ी। IIT इज नॉट एज टफ एज इट यूज्ड टू बी, प्लीज नोट डाउन। डिफरेंस इज स्टार्ट बदल गया। पहले लोग, मैं जब यहाँ था 12 पास बच्चे रिजल्ट करते थे, फिर 11 8 9 से स्टार्ट करना है। और सिर्फ IIT नहीं, मेरा एक अपना कोटेशन है, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ लोग कहते नहीं सर कहीं से आप उठाए हुए हैं। मैं एक बात कहता हूँ, याद रखना और बोलना ओरिजिनल है या नहीं। IIT के साथ भी, IIT के बाद भी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। अरे दुनिया समाज से कट गए हो क्या? ये LIC का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो IIT इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर होता है बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए अच्छी खबर दे दें, IIT में लड़कों को 18000 रैंक तक दाखिला मिलता है, सिर्फ 100 to 100 रैंक में नहीं। आप लाओ इस जगह से, मैंने बेस्ट रैंक 27 देखा है, अरित्रा मित्रा चिन्मया विद्यालय अरित्रा 27, वो बेस्ट रैंक था 2005 का। उसके बाद उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर ट्रैक तो कर ही रहा हूं। और ऐसे ऐसे बच्चे देखा एक लेवल के, बस थोड़ा सा टेढ़ा चल दी 11th में, रैंक नीचे चला गया। आप बहुत विद्वान होना, लेकिन एक बात याद रखना, इस देश को NCERT चलाती है, CBSE चलाती है, कोचिंग नहीं चलाता है। मैं कोचिंग में भी रहा हूं, कोचिंग का बात सुनना, जरूर सुनना, पर पहले गुरुजी की बात। और एक फॉर्मूला ले लो, खाता न बही, स्कूल जो कहे वही सही। 10 तक तुम मानते हो, देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। 11th में बाप रे बाप, हाई सर हाई का है, हाउ सर हाउ का है ना? तो सब ठीक है, क्यों मानना चाहिए? CBSE राइटिंग स्किल का टेस्ट है, कोचिंग तुमको ट्रेंड नहीं करता है। एक बात। अब आते हैं मेडिकल पे। 2013 में 52,225 सीटें इंडिया में थी। अभी सिर्फ सरकारी सीटें 50,000 से ऊपर है। मेडिकल इज ऑल्सो नॉट टफ। दिक्कत इसलिए है कि आप 12th में बायोलॉजी पढ़ते नहीं, स्कूल वाली मोटी मोटी किताब लाते हैं, फिर मोटे मोटे नंबर आते हैं, और कई बच्चे तो लखपति हो जाते हैं रैंक ला करके। हाँ, लाखों में रैंक आता है, जैसे लाखों में एक बेटा है, उसी तरह लाखों में एक रैंक आता है। आपको बेसिक्स करना है, नीट इज वेरी इजी दीज डेज। फिजिक्स पे गुमराह मत होइएगा, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहेगा देखो इतना नंबर आया।
एक बात याद रखिएगा, जब भी पेपर टफ होगा कट ऑफ नीचे आएगा। आप लिख लीजिए, इस बार 720 शायद ना आए, 680 के नीचे चीजें आएंगी। पेपर टफ से मतलब नहीं है, नीचे से। अब आते हैं तीसरी, जो बच्चे कॉमर्स में मैगीज में, आईएम्स में दाखिला टॉप प्रायोरिटी अब होना चाहिए। जो सीए के बाद ऑप्शंस हैं, जिन्हें सीए लेना है वो तो ले लें। आईएम्स में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है ग्रेजुएशन के बाद, टोटल 4500 सीटें हैं। दूसरा दरवाजा है 12th के बाद, और इस साल हम लोग चाहते हैं कि रांची बोकारो से, और पहले भी बच्चे कर रहे हैं, आईटी मैट एक एग्जाम है। 2011 में आईएम इंदौर ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया, और वहां से रांची बोकारो से बच्चे सक्सेस करते थे। सूरत से आपको याद होगा, कुशागर करके बच्चा था, सबसे बदमाश बीपीएस में, और जब वो रिजल्ट किया हुआ निफ्ट में कर गया, उसी दिन मुझे लगा कि बदमाशी से संभव नहीं है। जो बच्चा जब ठान लेगा, निफ्ट है, क्लैट है, इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, आप कर सकते हैं। डिटेल में बात नहीं जाएंगे। सबके लिए संभावना, ईश्वर ने सबके लिए मौका दिया है, हर किसी को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है। पर एक बार, आप दुर्गा पूजा का मेला लगता है ना सेक्टर 4 में, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। या सिटी सेंटर में देखिएगा, आप आइएगा ना, वो जो जयजवान पेट्रोल पंप है, वहां से कार गुजरती है तो कुत्ता दौड़ता है। तो मैं बोकारो में था, एक टीचर से मैंने पूछा कि सर ये कुत्ता दौड़ता है कार के पीछे, कभी पकड़ पाया क्या? बोला विकास जी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पकड़ पाया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि पकड़िए लेगा तो क्या कर लेगा। तो तुम साइंस लो, कॉमर्स लो, क्या लोगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इससे पड़ता है कि आप उसका करेंगे क्या। और हर बच्चा सफल है। मैं मनोविज्ञान का छात्र हूं, साइकोलॉजी में सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि हर आदमी पागल है, डिफरेंसिव डिग्री का है। मैंने इसको कन्वर्ट किया कि हर आदमी सक्सेसफुल है, डिफरेंसिव डिग्री का है। और जब जहां सर आएंगे, मैं जब भी IAS IPS ऑफिसर्स दिखते हैं, मैं एक प्रश्न उनसे कर देता हूं कि सर जरूर आंसर कीजिएगा, क्या जब आप 10th में थे तब पक्का थे कि हो जाइएगा? ये बताना है, बिल्कुल ये समझिएगा। क्या 10th में आपके जीवन में दुख नहीं आया? क्या मम्मी पापा से आपको कुटाई नहीं पड़ा कभी? या ऐसा एकदम सीधे आपका एकदम जय जयकार हुआ? ये जो है ना, हर बच्चे का लोज होता है। और मैं बता दूं, एक सलाह देता हूं 10th में बच्चे जो 11th में, एक अच्छा दोस्त जरूर बनाओ, या जो भी अच्छे बच्चे। और दूसरा, शिक्षकों में एक दोस्त खोज लो। सूरज शर्मा सर भी दोस्तों के दोस्त थे, बच्चे बड़ा फेवरेट रहते। और आखिरी पंक्ति में छोड़ दिए जाता हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें नंबर कम आए हैं। रामदरस मिश्र की बड़ी पॉपुलर पंक्तियां हैं, जिसे भी पंकज त्रिपाठी ने फेसबुक पे पोस्ट किया। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। पेरेंट्स, अगर नंबर कम आए, आजकल तो बोकारो में 94% वाले भी शर्माते हैं। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाब के घर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाब के घर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांग लगा करके, जब भी लगे कि कोई छलांग लगा दिया, ये पंक्तियां याद रखना। जहां आप पहुंचे छलांग लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते।